Jensen Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. اللہ کے اثرات ہیں. سورج کی تپش سے انسان کو صحت ملتی ہے. چاند کی ٹھنڈک سے انسان کو سکون ملتا ہے. پانی کے پینے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے. اسی طریقے سے ایک صحیح گوہر کے استعمال سے انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے. اپنی منزل کو انسان پہنچ سکتا ہے, خوشحال رہ سکتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں, پریشانی پیسوں کی ہو, پریشانی صحت کی ہو, آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہو, بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو, کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں, یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں, یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں, اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. راسک جیمز اینڈ جویلرز. راسک جیمز اینڈ جویلرز. Only one visit can change your life. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا دوست احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. کسی بھی پریشانی کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے, اور حقیقت یہ کہ کوئی بھی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. حقیقت یہ کہ کوئی مشکل کبھی کبھی بڑی مشکل سے حل ہوتی ہے. ریسرچ کی گئی ہیں اور ریسرچ میں یہ پایا گیا ہے کہ جو آرنامنٹس ہیں, جو زیورات ہیں, ان کے پہننے سے انسان کے دل و دماغ اور جسم پر مفید اثرات پڑتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ سونا پہنیں گے, خاص کر کے جو لیڈیز ہیں اگر وہ سونا پہنتی ہیں تو ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر رک جاتی ہے. اگر چاندی پہنتے ہیں تو ہائی بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول میں رہتا ہے, ہڈیوں میں طاقت آتی ہے. اگر ہم تانبے کی بات کریں تو اس کے پہننے سے کیا ہوتا ہے کہ ہاضمہ درست ہوتا ہے. اور جہاں تک ہیرے جواہرات کی بات ہے تو اس کے پہننے سے سب سے بڑی بات ہے کہ غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ہاضمے کو بھی درست کیا جا سکتا ہے. تو ہیرے کی بات تو بالکل الگ ہے. آج ہم بات کریں گے انہی سب باتوں پر, انہی سب سوالوں کو ہم آج لیں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے. ہمارے مہمان ڈاکٹر ایم رضا صاحب پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے اس چینل پہ تشریف لا کے آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہے ہیں. اگر آپ کا تعلق حیدرآباد سے یا اس کے آس پاس کے اضلاع سے ہے تو آپ دیے ہوئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, اور جو بنگلور یا آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر روشن صاحب سے بات کر سکتے ہیں, ان سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور ان سے اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین, آپ اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر ایم رضا صاحب کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ راحیل صاحب. اور سب سے پہلے ہم آج کے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں صاحب کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں چنئی سے بات کرتی ہوں, زبیدہ بیگم. جی اپنی تاریخ پیدائش بتائیے. میں میرے بھانجے کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بھانجے کا نام بتائیے. ان کا نام ہے عبدالقدر. عبدالقدیر. ہاں جی تاریخ پیدائش. پیدائش 2 جون ہے. جی 1969 ہے ان کا. 69. 1969 ہے. 969. ہاں جی 2 جون. جی وقت بتائیں گی کچھ؟ وقت دوپہر کے 4:30 اور 4 کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم زبیدہ بیگم صاحبہ. وعلیکم السلام. میں چنئی سے بات کرتی ہوں. کلوار میں بھی بات کری تھی ڈاکٹر صاحب آپ سے. کیسے ہیں آپ؟ نثار احمد کی بیوی ہوں میں. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو. ماشاءاللہ. میرے بھتیجے کے بارے میں, بھانجے کے بارے میں پوچھنا ہے. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا منگنا ہو گیا, ان کی صحت اچھی ہے. ڈاکٹر صاحب. اللہ سلامت رکھے. بچہ بہت پریشان ہے تو میں بات کر رہی ہوں. اللہ سلامت رکھے. ابھی جو بتایا 69 مطلب ان کو کیا 40 سال کے اوپر ہیں؟ ہاں 40 سال کے اوپر. اوکے سمجھ 2 جون ہے. سمجھ گیا. 2 جون. عبدالقادر ہے ان کا نام. پکارتے امتیاز ان کا نام. پکارتے ہیں امتیاز. عبدالقادر نام رکھا. اور 4 کے بیچ میں پیدائش ہوئی ان کی. اوکے اوکے. دیکھیے جس دن جنم ہوا منڈے کا دن تھا. لائف میں ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں آیا ہے, کیونکہ اس دن کا اگر دیکھا جائے اور آپ نے جو وقت دیا ہے 4 سے 4:30 کے بیچ میں, شام کا وقت دیا ہے آپ نے, اس سمے میں دیکھا جائے تو اسینڈنٹ جو ہے لیبرا کا ہے, جس کا لارڈ ہوتا ہے وینس. 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے الانگ ود دا سیٹرن. 8واں گھر کا مطلب ہوتا ہے ایرس میں سیٹرن کو نیچا مقام بتایا گیا ہے. سیٹرن کے ساتھ وینس کا بیٹھنا, دوسری طریقے سے اسینڈنٹ کا 8ویں گھر میں بیٹھنا. میں کہتا ہی رہتا ہوں
हमारा जो सब्जेक्ट होता है साइंटिफिकली जो कहा जाता है, असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है 6, 8, 12वें घर में बैठने से इंसान की ज़िंदगी में परेशानियों का सामना रहता है, मुश्किलात बहुत रहती हैं। जैसे कि अगर इनका देखा जाए तो अब्दुल खादर साहब का, इम्तियाज़ साहब का अगर देखा जाए तो स्पेशली शादी की लाइफ में सुकून नहीं है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, मुश्किलात बहुत हैं। उसी के साथ में उनको अच्छा किस्मत देने वाला, प्रोफेशन में आगे लेकर आने वाला, खर्चे को रोकने वाला, डेवलपमेंट देने वाला मेर्क्यूरी भी खराब है। जब मेर्क्यूरी खराब हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में मुश्किलात आती हैं, कारोबारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। जायचे में दिखा रहा, एक तरफ से कारोबार की परेशानी, एक तरफ से जो है पर्सनल परेशानी है, शादी में मुश्किलात, टेंशन्स हैं। इससे बाहर निकलने के लिए वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको करना है एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में सफ़ेद पुकराज व्हाइट सफ़ेद कहा जाता है, दोनों बनाकर आपके भांजे को पहनाइए। इंशाल्लाह ताला 2016 जुलाई के बाद ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। आप तो ऑलरेडी आपके बेटे को पहना चुके हैं, तबसरा कर चुके हैं, अच्छा रिजल्ट भी मिल चुका है और आपको मालूम है कि किस तरीके से जवाहरात को मंगवाना है। आप तो एक्सपर्ट भी हो चुके हैं क्योंकि हमारे आप एक रिपीट क्लाइंट भी हैं और आपके बेटे को अच्छा भी हो इंशाल्लाह ताला। तो रास्ता तो मालूम है, आप फ़ोन करके मंगा लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। ये दोनों बनाकर पहनाइए, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह से आपने जुबैदा बेगम साहिबा के बेटे को पढ़ लिया, उनको फ़ायदा हुआ, इंशाल्लाह इनके भांजे को भी उनको तो फ़ायदा तबसरा होगा। कर चुके हैं, ऑलरेडी वो ले चुके हैं, जी हाँ, उनको जी तो हाँ। मालूम है उनको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद हकीमुद्दीन तवक्कली करीमनगर जटिया से बात कर रहा हूँ। नाम बताइए पूरा। मोहम्मद हकीमुद्दीन तवक्कली। मोहम्मद हकीमुद्दीन। जी आपको अपने बारे में बात करना है? आपको अपने बारे में बात करना है? जी साहब, बात जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 22 जुलाई 1972। 22 जुलाई 1962। वक्त बताएंगे कुछ? वक्त क्या? हेलो। वक्त याद? अच्छा अच्छा, आपने 1962 बताया ना? 1972 72। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारे साथ डॉक्टर एम रजा साहब मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट अपना सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हकीमुद्दीन तवक्कली साहब, कैसे हैं आप? आपकी आवाज डिस्टर्बेंस है, जहां से आप बात करें नेटवर्क नहीं है। जी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ साहब, 2-4 माह से लाइन के माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बत का। आप लोग देखने ही से ही प्रोग्राम तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा और आज भी का। चलो आज तो लाइन मिल गई आपको। इंशाल्लाह लाइन मिलना समझ लीजिए जिंदगी में मुश्किलात को खत्म करना है। एक बार मुलाकात करें जिंदगी खत्म होती है, क्योंकि हमारा जो कैप्शन है 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ, वो ऑफिस में है। यहाँ पर लाइव शोज में कैसा रहता है, जब आपको लाइन मिलती है इसका मतलब होता है जिंदगी से जो परेशानियों से निजात इंशाल्लाह ताला मिल जाती है। देखिए अल्लाह के हुक्म से, जवाहरात की बरकत से इंशाल्लाह ताला आपको जिंदगी में खुशी मिलेगी। जैसे कि आपने डेटा पर, मैं समझ गया सर, हम बता देंगे, आराम से सुनिएगा आप। जैसे कि आपने डेटा पर दिया है, हफ्ते के दिन जन्म हुआ है आपका, एसेंडेंट देखा जाए तो कैंसर का, जिसका लार्ड होता है मून, 5वें घर में बैठा हुआ है, डेबिलिटेड में बैठा हुआ है, नीचे स्थान में बैठा हुआ है, माइंड कंफ्यूजन रहता है, सही फैसला नहीं ले सकते, डरूला मिजाज रहता है, मूड स्विंग्स रहता है, परों की तरह रहता है। कभी सोचते हैं कि ये काम करूं, कभी सोचते हैं वो काम करूं। अभी तक बहुत से काम कर चुके हैं लेकिन किसी में भी आपको कामयाबी नहीं मिली है। सेकेंड हाउस अगर देखा जाए तो जो अर्निंग हाउस का होता है और आपको सेहत देने वाला जो होता है सन का है। अगर सन भी देखा जाए तो उसका भी पोजीशन ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ में ना अभी तक स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है। कारोबार में परेशानी है, सुकून खो चुके हैं। साथ में हेल्थ का इश्यूज दिखा रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी प्रॉब्लम भी है, स्टोमक डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, ये परेशानी आपकी जिंदगी में है। इंशाअल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए आपको सन को डेवलप करना है, साथ में मून को डेवलप करना है, जिसके लिए आपको करना है ये एक मोती, साथ में एक रूबी याकूत कहा जाता है, मिनिमम 3-3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं तस्मीना बैंगलोर से बात कर रही हूँ। आपको अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मेरे भाई के बारे में जानना है। भाई का नाम बताइए। मोहसिन अली खान। मोहसिन अली खान। हाँ जी।
جی تاریخ پیدائش بتائیے ان کی. 24 فیبروری جی 1994. وقت بتائیں گے کچھ؟ دوپہر کے 1 بجے. جی آپ کیا جاننا چاہتی ہیں, کیا پرابلم ہے, کیا سلوشن چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خود آپ ان سے سوال کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم تسنیہ صاحبہ, وعلیکم السلام. کیسے ہیں میری بہن؟ اللہ کا فضل, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا ہے, بات کر رہا ہوں, اچھا ہوں. بتائیے آپ جی کے. آپ کا جو طریقہ بات کرنے کا سب بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب. شکریہ آپ کا جو شکریہ شو بہت اچھا چل رہا ہے. شکریہ شکریہ. آپ ہم لوگ ہر ویک دیکھتے ہیں, ہمارے گھر پہ ایگزیکٹ 5 o'clock ڈال دیتے ہیں. شکریہ شکریہ. جیسے کہ آپ نے محسن علی خان کا جو ڈیٹ آف برتھ بتایا ہے, جمعرات کے جمعرات کے دن جنم ہوا ہے ان کا. تھوڑا اگر ان کا دیکھا جائے تو اسینڈنٹ جو ہے ٹارس کا بنا ہوا ہے. دیکھیے یہاں پہ ناظرین کے لیے بتا دوں, اگر آپ ڈیٹ آف برتھ, اگر ٹائم آف برتھ اگر ایکوریٹ دے دیں گے تو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہی تو ہم نے ریسرچ کیا ہے, اسی میں تو ہم نے پی ایچ ڈی کی ہے, اسی میں تو ڈاکٹریٹ کیا, وہی تو تجربہ اپنا زندگی کا ہے. جہاں پر ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ نہ ہو وہاں پر پوچھنا پڑتا ہے, کس کے لیے پرابلم کے اوپر دینا پڑتا ہے. اینی وے جیسے کہ محسن علی خان کا اگر دیکھا جائے ٹارس کا بنتا ہے, جس کا اسینڈنٹ بیٹا ہوا ہے 10ویں گھر میں بیٹا ہوا ہے, along with the Saturn. سیکنڈ ہاؤس کا جو مالک ہوتا ہے میرکیوری گردش میں ہے. جب میرکیوری گردش میں آ جاتا ہے انسان بات چیت کم کرتا ہے, ہر چیز خالی گراسپنگ پاور, ہر چیز کو لیتا ہے لیکن زیادہ آؤٹ پٹ نہیں رہتا, دل میں دکھ رہتا ہے لیکن اوپن نہیں بیان کر سکتا, ایسا تھوڑا مزاج رہتا ہے, خاموشی زیادہ رہتی ہے ان کے یہاں, مطلب محسن علی خان کے نیچر میں. دوسری بات بتا دوں, تھوڑا سوچ جو ہوتے سوچ بھی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ میرکیوری جو ہوتا ہے سوچ دینے والا, عقل کو بڑھانے والا, تھنکنگ پاور کو بڑھانے والا. جب میرکیوری ویک ہو جاتا ہے سوچ کم ہو جاتی ہے, عقل تھوڑا پریشانی ہوتی ہے اور میموری پاور میں پرابلمس آتے ہیں, جس کی وجہ سے ایجوکیشن میں مشکلات آتے ہیں. اگر ہم ان کا ذائچہ دیکھا جائے تو ٹیکنیکل فیلڈ میں ہیں, انشاءاللہ زندگی میں باہر جانے کے امکانات زیادہ ہیں, لیکن اسینڈنٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے, میرکیوری کو اسٹرانگ کرنا ہے. ان دونوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک ایمرالڈ پہنانا ہے, منیمم 3 کیرٹ کا رہنا ہے, ساتھ میں ایک سفید پگڑچ پہنانا ہے, منیمم 3 کیرٹ کا رہنا ہے. ایمرالڈ کو چھوٹی انگلی میں پہنانا ہے, وائٹ سفیر کو رنگ فنگر میں پہنانا ہے. یہ دونوں بنا کر پہنا, انشاءاللہ تعالی زندگی میں خوشحال رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. یہاں پر ناظرین کے لیے تھوڑا سمجھا دیں, انگوٹھی جیسے کہ ہم نے اب بتایا, چھوٹی انگلی میں ایمرالڈ پہننا ہے, دوسری فنگر میں جو ہے وائٹ سفیر پہننا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب انگوٹھی ملی, قدرت کے مطلب خدا کی طرف سے جب ایک تحفہ ملا, انگوٹھی ملنے کے بعد ان کو حکومت ملی انسانوں کے اوپر, جنوں کے اوپر, جن کی حکومت تھی. تو جب انگوٹھی ملی تو انگوٹھی پہننے کے لیے وہ انگلیوں سے بات کرتے ہیں. تو خدا کی طرف سے اتنی حکومت تھی, وہ اپنے آدھا سے بات کرتے تھے. سب سے پہلے انگوٹھا کہتا ہے میں سرپنچ ہوں, میں چیئرمین ہوں, میں تو مین ہاتھ کا جو مین چیز میں ہوں, میرے انگوٹھے میں پہنیے گا. دوسری انگلی کہتی ہے میں شہادت دینے والی ہوں, میں گواہی دینے والی ہوں, میرے انگلی میں پہنیے گا. تیسری کہتی ہے سب سے لمبی ہوں, میرے میں پہنیے گا, میں اونچے قد رکھتی ہوں, میرے ہاتھ میں پہنیے گا. چوتھی کہتی ہے میرے انگلی میں پہنیے کیونکہ میرا جو ہے رگ جو ہے دل کو کنیکشن کرتا ہے, میرے انگلی میں پہنیے. جو 5ویں انگلی ہوتی ہے چھوٹی انگلی, خاموش بیٹھ جاتی ہے. سلیمان پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اے چھوٹی انگلی تو کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں کیا کہوں, سرپنچ تو وہ بن گئے, وہ تو گواہی دینے والی دوسری انگلی بن گئی, بیچ والی لمبی بن گئی, مطلب بڑی بن گئی, اور چوتھی کہتی دل سے رشتہ ہے, میرے پاس کیا ہے, میں تو چھوٹی ہوں, ادنا ہوں. تو حکم خدا آتا ہے کہ اے سلیمان اس انگوٹھی کو چھوٹی انگلی میں پہنو. دیکھیں کتنا ایک انٹرسٹیڈ ہے یہ جو انگوٹھیاں کا جو رواج ہو رہا ہے. ہم جو جواہرات پہنتے ہیں تمام انبیاء نے انگوٹھیاں پہن کر دکھائی ہیں. تو یہ حساب سے چھوٹی انگلی میں اس پتھر کو پہنتے ہیں, اس جواہرات کو پہنتے ہیں. جب سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو پہنتے ہیں اس کے بعد ان کو حکومت ملتی ہے, مطلب ان کے پاس اتنا پاور آتا ہے, طاقت آتی ہے. اس حساب سے جو ہم انگوٹھیاں بتاتے ہیں یہ چھوٹی انگلی میں پہننا ہے, رنگ فنگر میں پہننا ہے. تو ایک بار کیا ہوا, یہ ایک عیسائی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, بیٹھتا ہے, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں رہتی ہیں اور لوہے کی انگوٹھی پہنتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. سامنے جاتا حضرت علی علیہ السلام بیٹھے رہتے ہیں, ان کے پاس جا کے پوچھتا ہے کیا بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں, تھوڑا غصہ ہیں, خفا میں ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں تم پہلے وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آؤ, انشاءاللہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری مرتبہ جب عیسائی اس انگوٹھیوں کو اتار دے کر چاندی کی انگوٹھی پہن کر آتا ہے تو حضور مسکراتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. اسی لیے اسلام میں جو کہا جاتا ہے مردوں کے لیے سونا حرام ہے, تو وہ سونا نہیں پہننا ہے, عورتوں کے لیے سونا جائز ہے. تو ہمارے یہاں جو ہوتا ہے مردوں کے لیے
चांदी की अंगूठी को बताई गई है, चांदी की अंगूठी पहनना है, जो नगीना होता है चांदी में बिठाना है। लेडीज के लिए कोई मसला नहीं है, सोने में पना बनाकर पहना सकते हैं। देख कितना इंटरेस्टिंग है जी। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हमने वाकया बताया, अंगूठियों में जो मुबाहिसा हुआ, तो छोटी उंगली में उन्होंने अंगूठी पहनी। आन हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक ईसाई आया तो बात नहीं करे, सोने की अंगूठियां आती, लोहे की अंगूठियां आती। ये बात क्यों बताना, बहुत से लोग आते हैं सोने की अंगूठी पहनते हैं, मतलब वो ये चीज से दूर हैं, वो पहनना बोल के नहीं है, उनको नहीं मालूम कि वो पहन लेते हैं, क्या है महंगी चीज है, कहीं चले जाएंगे मुसाफिरत में तो काम आ जाएगी, पैसा मिल जाएगा, ये सब सोच लेते हैं। तो ये हिसाब से थोड़ा दीन से दूरी है। ये नहीं कि वो पहनना है, मनमानी कुछ भी नहीं है। हमारी कौम सोई हुई है, जगाने वाले चाहिए, जगाने वाले की जरूरत होती है, क्योंकि कौम सोई हुई है, उसको जगाने की जरूरत होती है। बहुत से लोग आते हैं लोहे की अंगूठी पहनते हैं, बीच की उंगली में पहनते हैं, मतलब कलमे की उंगली में पहनते हैं, बहुत से लोग आते हैं। ये हिसाब से ये अंगूठियां पहनने के लिए भी उंगली में फजीलत है, तो ये हिसाब से पहनने से इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आपको जो है किंग ऑफ जेम्स कहा जाता है, माशाल्लाह आपको महारत भी है। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, नमस्कार जी नमस्ते। नमस्ते, कौन साहिबा, कहाँ से बात? मैं सर जम्मू रामबन से बात कर रही हूँ, सुषमा शर्मा। मुझे डॉक्टर साहब से अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी, आपके बेटे का नाम बताइए। रजत। रजत जी। उनकी तारीख पैदाइश क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 मार्च 1987। 7 मार्च 1987। वक्त बताएंगे आप? शाम को 5 बजे। ठीक है, आपने सही जगह कॉल किया। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप खुद उनसे बात कर सकती हैं। जी नमस्कार सुषमा शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? सर मुझे अपने बेटे के बारे में, मैं रामबन से बात कर रही हूँ। ओके ओके सर, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर। मैंने सुना आपका कश्मीर आने का प्रोग्राम है, जरूर आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जरूर हम कोशिश करेंगे। आप लोगों का प्यार बहुत इसरार कर रहे हैं कश्मीर आने के लिए, इंशाल्लाह हम टाइम बनाएंगे। यहाँ पे तो थोड़ा मसरूफ रहते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, इंशाल्लाह ताला कभी मौका महल बनाएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। वहाँ पर आने से पहले इसी टीवी के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्म भी करेंगे। बताइए आपके बेटे के बारे में क्या जानना है? 7 मार्च 1987। ओके, शाम को 5 बजे उनका जन्म हुआ है सर। मुझे पूछना है उनकी नौकरी बदलेगी और उनकी शादी कब होगी? शादी कब होगी, नौकरी कब बदलेगी, इंशाल्लाह हम बता देंगे। शनिवार के दिन जन्म हुआ है, मालूम है आपको? आपका बेटा शनिवार के दिन जन्म लिया है। उनका असेंडेंट है लियो का। लियो का जो साइन होता है टाइगर, जैसे कि लीडरशिप कहा जाता है, डोमिनेटिंग नेचर है, जिद्दी है, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर बनेगा, कम से कम 10 लोग हाथ के नीचे काम करेंगे आपके बेटे के, इतना अल्लाह ने उनको ये स्किल्स बख्शे हैं। दूसरी बात है उसका जो असेंडेंट होता है 7वें घर में स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो जॉब कैंपस सिलेक्शन कहा जाता है। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई जॉब मिल गया, लेकिन जॉब में और आगे जॉब में जाने के लिए कब जाना है पूछ रहे हैं। जून के बाद और अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाएंगे, जा सकते हैं। लेकिन 5वें घर का जो मालिक होता है, हाउस ऑफ प्लानिंग कहा जाता है, उसको डेवलप करना है, जिसको जुपिटर कहा जाता है। तरक्की के लिए, आला आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए जुपिटर का स्ट्रांग होना जरूरी। जो कि आपके बेटे के जायचे में अगर मैं हिंदू एस्ट्रोलॉजी बता दूं, राहु के साथ गुरु मिला हुआ है। गुरु चंडाल कहा जाता है। गुरु चंडाल का मतलब होता है ज्ञान को खींच लेना, तरक्की को खींच लेना, परेशान करना, प्रॉस्पेरिटी को रोक देना। क्योंकि हमने जो इल्म सीखा है हर मज़हब के हम लोगों को बताते हैं, तो ये हिसाब से प्रॉब्लम है। दूसरी बात बता दूं आपको, थोड़ा मून भी खराब है, जिसकी वजह से सुकून नहीं रहता, थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, मूड स्विंग्स में रहता है, थोड़ा अकेलापन महसूस करता है, फीलिंग लोनलीनेस, मतलब अपने आप को अकेला फील करना। और दूसरी बात होती है ग्रुप फोबिया, 4 लोगों के बीच में बात करने के लिए डर जाता है। लेकिन जायचा के असेंडेंट क्या कहता है, लीडरशिप है, कमांडिंग पावर है, मैनेजर है, टीम लीडर है। लेकिन मून का खराब होना बच्चे को वो चीजें छीन लेता है। इससे आगे बढ़ने के लिए मून को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा, जिसके लिए आपको करना है एक येलो सफायर पुखराज कहा जाता है, साथ में एक मोती केशी पर्ल कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिए। आपने जो सवाल के शादी के बारे में 2017 मार्च में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं खालिद अंजुम बात कर रहा हूँ, तुमकुर से बात कर रहा हूँ सर। खालिद अंजुम कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। तुमकुर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ मैं। जी, आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ सर, मैं अपने बारे में सवाल करना है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। 21 मई 1990। 1990। वक्त? सर वक्त तो मुझे पता नहीं है, और 21 मई 1990।
ठीक है, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं जी। सलाम अलैकुम खालिद अंजुम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं मेरे भाई? आप टुमकुर से बोल रहे हैं, कर्नाटक से? जी कर्नाटक तुमकुर से बात कर रहा हूँ सर। फरमाइए सर, कैसे हैं आप? सर आपका अल्लाह ताला बहुत आपसे खिदमत ले रहा है, ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि मैं 9 महीने से ट्राई कर रहा हूँ आपके कॉल को बात करने के लिए, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मेरा कॉल। चलो लाखों लोग ट्राई कर मिल गया। अल्लाह का करम आज कनेक्ट हो गया। मैं आपके रोशन सर के पास मेरे रिलेटिव सब जा रहे हैं, सब जाके ये कर रहे हैं, दिखवा रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है रोशन सर से। बस मैं अफोर्ड नहीं कर सक रहा है तुमकुर से, मैं थोड़ा फाइनेंशियली वीक हूँ। ओके, तो इससे मुझे थोड़ा मेरे बारे में तो जॉब के बारे में कुछ मैं जानना था। उनसे मेरे रिलेटिव्स को सारा फायदा हो के वो सब दुबई सब सऊदी अरबिया सब सेटल हो गए, शादी वगैरह सब हो गई है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह आपको भी अच्छा होगा। मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि ना हाथ में कोई जॉब है ना कुछ है। इंशाल्लाह आ जाएगा, अच्छी जॉब भी आ जाएगी। जिस तरह आपके रिश्तेदारों को जॉब मिला, खुशहाल हैं, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, आपको भी ख्वाहिश है बाहर जाने की? जी जी सर, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि आपने कहा कि मैं टुमकुर से बेंगलुरु नहीं जा सकता, तो कर्नाटक टुमकुर के लोग जितने भी देख रहे हैं उनके लिए मैं खुशखबरी दे दूं। आने वाले मई के महीने में हमारा वहाँ पे एक ब्रांच ओपन हो रहा है, जहां पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब हर वीक ये मतलब हर हफ्ते में 2 दिन वहां पर गुजारेंगे। अशोका रोड में प्रशांत थिएटर के अपोजिट में अपना एक नया शोरूम खुल रहा है, वहां पर अपना एक नया ऑफिस खुल रहा है। मई के महीने में जो टुमकुर सिरा जितने भी जो आसपास के जितने भी जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी बता दूं। बहुत से लोगों का इसरार था कि टुमकुर में भी हम लोग नहीं आ सकते, बहुत दूर है, हमको थोड़ा परेशानी हो रहा है वहां से क्या होता है। बहुत से लोगों ने बताया, शिकायत भी की कि टुमकुर से बेंगलुरु तो नजदीक है, 60 किलोमीटर का फासला, लेकिन ट्रैफिक इतनी होती है, 3 घंटा 4 घंटा निकल जाता है, दिन तमाम निकल जाता है, मुश्किल हो रही है। तो टुमकुर वालों के लिए खुशखबरी है, वहां पर आसपास में रहने वालों के लिए, जहां पर हमारा ब्रांच ओपन होगा, जहां पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब विजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात है, जैसे कि आपने कहा आपके रिश्तेदारों को अच्छा फायदा हुआ है, खुशहाली है, तो हजारों लोगों को फायदा हो रहा है। नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत है, हुक्म खुदा के साथ उसकी नेमत की बरकत में इंशाल्लाह ताला जिंदगी में जो भी परेशानी उसका मसला हल हो जाएगा। और आपको भी ख्वाहिश है बाहर जाने की, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है अगर देखा जाए तो थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, लाइफ में अभी तक ना स्टेबल मिला, ना डेवलपमेंट मिला, ना तरक्की मिली, अभी तक जिंदगी में जहां हैं वहां पर रुके हुए हैं। उससे बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है, साथ में एक व्हाइट सफेद सफेद पुकराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। आपको तो मालूम है, ऑलरेडी आपके रिश्तेदार बहुत से लोग जा चुके हैं, डॉक्टर रोशन साहब के पास सर्विस ले चुके हैं, तो उसी तरीके से आप सर्विस ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट मंथ मई के महीने में वो खुद वहां पर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप सर्विस लीजिए, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, जिसमें आप तरह तरह के सवालात पूछ के जवाबात हासिल कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाबात दे रहे हैं डॉक्टर MM रजा साहब, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं और किंग ऑफ जेम्स कहलाते हैं। तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, कई एक इनामात से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो अभी आपने बोला था, हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से मतलब आपने उंगलियों से अंगूठे से बात करी थी और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी आया कि इस अंगूठी को उंगली में पहनो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? बहुत अच्छी रिसर्च आपकी है। हाँ, रिसर्च करते हैं ना, तो मतलब लोगों को प्रॉपर वे में सर्विस देना है। जी जी। बहुत से लोग आते हैं तो उनको मालूम होना है इसकी फजीलत क्या है। अगर बताऊँ जवाहरात के बारे में बता दो, जैसे कि हमारा जो नाम है प्रोग्राम का, जवाहरात का करिश्मा, जवाहरात के कमालात, जवाहरात के फजीलात, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सा पावर रहता है। और एक बहुत बड़ा सबक भी है वो उंगलियों से अगर हम लेना चाहते हैं। जैसे अंगूठे ने कहा कि मैं चेयरमैन हूँ, सरपंच हूँ, और दूसरी उंगली में गवाही देने वाली हूँ, तीसरी ने कहा कि सबसे बड़ी हूँ, ऊंची हूँ, और चौथी ने कहा कि दिल को मेरा रिश्ता होता है, पांचवी ने तो खामोश हो गया। इसका मतलब क्या है, समाज में जो अना की मंजिल पर रहते हैं उनको मकाम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चौथी उंगली जो पांचवी उंगली जो थी खामोश थी। तो खुदरत से आवाज आई, आए सुलेमान उस अंगूठी को छोटी उंगली में पहनो, उसको इफ्तिखार दो, फख्र दो, जैसे कि फख्र करने लगी। मतलब क्या है, खामोश थी, जब पूछा गया कि तू क्यों खामोश है, तू क्यों कुछ नहीं बोल रही है, तो कहते मैं तो सबसे छोटी हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ।
अंगूठा मेरे से बड़ा है, कलमे की उंगली बोल रही है कि मैं शहादत देने वाली हूँ बोल रही है, नंबर तीसरी बोल रही है सबसे बड़ी हूँ, ऊंची हूँ, चौथी बोलती है कि दिल को रख का कनेक्शन है, तो मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो खुदा ने उसको इतनी फजीलत दी कि उसमें अंगूठी पहनते हैं। वो पहनने के बाद पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और अच्छा भी रहा। तमाम जिनों के ऊपर हुकूमत थी, सब लोग जानते हैं, तमाम इंसानों के ऊपर हुकूमत थी। उस जमाने हवाई जहाज बनाए, उन्हीं के हुक्म से सभी चलाना, मतलब बहुत बड़ी ये है ना हमारे पास। तो ये हिसाब से तो जवाहरात पहनने से इंशाअल्लाह ताला हर प्रॉब्लम में मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, पहले कॉलर को शामिल करते हैं ब्रेक के बाद जो शामिल हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जनाब गुलाम मेहदी बोल रहा हूँ जम्मू से। गुलाम मेहदी साहब जम्मू से, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं जनाब, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। नाम बताइए बेटे का। बेटे का नाम है वसीम रजा। फिर से नाम बता दीजिए। वसीम रजा, वसीम रजा, वसीम रजा, तस्नीम रजा, वसीम वसीम नसीम रजा। जी जी, उनकी तारीख जी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 6 जनवरी 1981। 6 जनवरी 1981। वक्त वसीम जी, वसीम रजा जी, ठीक है जी। तारीख पैदाइश का जो वक्त है वो आपको मालूम है? बता दीजिए, वक्त बता दीजिए। तारीख पैदाइश 6/1/1981। जी वक्त बताएंगे कुछ? वक्त 5 बजे मंगलवार, सुबह या शाम? सुबह 5 बजे। ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कीजिए। जी जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मेहदी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? भाई शुक्र अल्लाह का जनाब, दुआएं हैं आपकी। आवाज डिस्टर्ब है आपका। बहरहाल आपने जो आपके बेटे का नाम बताया वसीम रजा है ना? भाई शुक्र अल्लाह का, दुआएं हैं आपकी जनाब। आपका बेटा अमावस्या दिन पैदा हुआ, मालूम है आपको? वसीम रजा। आप टीवी, आप आराम से फोन रख दीजिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आप फोन में भी सुन रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने जो आपके बेटे का जन्म का जो डिटेल्स दिया है, मंगल के दिन पैदा हुआ है बच्चा, और उसका एसेंडेंट देखा जाए तो स्कॉर्पियो का है, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शॉर्ट टेम्पर है, सही समय में सही फैसला नहीं ले सकता। बाहर का लोग, इसको क्या कहा जाता है, खुद से दूसरों का मतलब सोचना, खुद का छोड़कर ज्यादा दूसरों को सोचने में रहता है। समाज सेवा ज्यादा करेगा लेकिन खुद की दुनिया को भूल जाएगा, ऐसा थोड़ा मिजाज है। दूसरी बात बताऊं, थोड़ा गुस्से का मिजाज, जल्दबाज है, झटकाफा है। लेकिन आपके जो बच्चे के जायचे में अगर देखा जाए तो अमावस का दोष लगा हुआ है, जिससे बाहर निकलने के लिए आपको एक मोती पहनाना है, साथ में ये एक रूबी पहनाना है। रूबी को याकूत कहा जाता है, मोती को केशी पर्ल कहा जाता है। दोनों बनाकर पहना इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अभी तक जिंदगी में सेटलमेंट नहीं हुआ है। शादी में मुश्किलात हैं, प्रोफेशन में मुश्किलात हैं, टेंशन ज्यादा हैं, झटकफा है, सही से फैसला नहीं ले सकता, मुश्किलात हैं। इससे बाहर निकलने के लिए रूबी और मुफीद रूबी और मोती जो मुफीद रहेगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम नवीद है, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम नवीद पाशा है। नवीद पाशा साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में बात करना जी है। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, तारीख पैदाइश। 25 फरवरी 1991। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और वक्त बताएंगे कुछ, तारीख पैदाइश का। पीर का दिन। जी वक्त 9:30 बजे रात में। अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर एम रजा साहब से बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम नवीद पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बताइए क्या जानना है? जी मेरे बारे में जानना था मुझे। अभी मैं फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ मेडिकल शॉप में। ओके। और मेरा कुछ उधर ठीक ये नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है। समझ तो क्या गया। मैं आगे मैं अपनी दुकान खोल सकता हूँ? क्या मैं तरक्की कर सकता हूँ आगे? इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे, फॉलो कीजिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। जैसे कि आपने कहा मंडे के दिन पैदा हुए हैं, पीर का दिन था, और आपका जायचे में असेंडेंट देखा जाए तो वीरगो का है। वीरगो का जो असेंडेंट होता है मर्क्यूरी का, 90% आपको कारोबार मुफीद रहेगा, फायदा पहुंचाएगा। कारोबार में जाइएगा,
किसी के अंडर में काम करने से आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात बताता हूँ, हाउस ऑफ प्लानिंग जो होता है डैमेज, आप जितने प्लानिंग कर रहे हैं पूरे फेल हो रहे हैं, आपकी मुश्किलात में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, प्लानिंग पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात है सैटर्न खराब है, जिसकी वजह से आपका काम में पोस्टपोन हो रहा है, डिले हो रहा है। अभी तो उम्र छोटी है, अभी आप फैसला ले सकते हैं, खुद काम बना सकते हैं। मेडिकल फील्ड भी आपके लिए अच्छा मुफीद रहेगी, अच्छा फायदा पहुंचाएगी, जिसके लिए ये करने से पहले आपको करना है अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, डेवलप करना है, जिसके लिए आपको एक एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफेर कहा जाता है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, सबसे पहले बता दूं, ये एमराल्ड पहनने से आपको क्या होगा, आपकी सोच बढ़ेगी, थिंकिंग पर बढ़ जाएगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, टैलेंट बाहर निकलेगा, हुनर बाहर निकलेगा, एक चालाकी बाहर निकलेगी, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। बिजनेस करने के लिए चालाकी की जरूरत है, टैलेंट की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, हुनर की जरूरत होती है। साथ में जो 5वें घर का जो मालिक हमने कहा सैटर्न खराब है, सैटर्न को डेवलप करने से क्या होता है, वर्क ऑन टाइम कहा जाता है। जैसे कि आपने कारोबार शुरू किया, आपको तरक्की की राह मिल जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कारोबार शुरू करने के बाद 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, तरक्की नहीं मिल पा रही है, मुश्किलात में फंसे हैं। ये आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो, इससे आपको टाइम पर काम होने के लिए एक ब्लू सफायर साथ में एमराल्ड दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नियाज अहमद फ्रॉम तुमकुर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। नियाज अहमद साहब, आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी हाँ सर। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 2/1/1956 सर। वक्त कुछ मालूम है आपको, आपकी पैदाइश? समय है अजान से पीर का दिन सुबह फज्र के वक्त। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल करके हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम नियाज अहमद साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोग्राम हर दिन देख रहा हूँ और आपके बेंगलोर के शोरूम को भी गया था। माशाअल्लाह। आपके बड़े भाई से मुलाकात नहीं हो सकी उस दिन। ओके। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। तो टुमकुर में हमारा शोरूम खुलने वाला, अभी सुना ना आपने? सुना सर, सुना। मई के महीने में हमारा शोरूम ओपन हो रहा है, वहाँ पे प्रशांत टैकिस है ना, क्या रोड नंबर कौन सा रोड? अशोका रोड में। अशोका रोड सर। हाँ अशोका रोड में, उसके अपोजिट में वहाँ पर अपना शोरूम खुल रहा है इंशाल्लाह ताला मई के महीने में। वहाँ पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब हर हफ्ता 2 दिन वहाँ पर गुजारे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ, ओके साहब, जैसे कि हमने डेट ऑफ बर्थ दिया उसके हिसाब से मंडे के दिन जन्म हुआ है आपका। लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं मिला है, ना डेवलपमेंट मिला है, तरक्की नहीं मिली, बहुत परेशान है, कर्जे में डूबे हुए हैं, बचपन से गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत देखी, अभी भी वही देख रहे हैं, कुछ भी जिंदगी में चेंज नहीं हुआ है। वही परेशानी बचपन में थी, आज भी वही परेशानी है, सिर्फ उम्र बढ़ चुकी है। तो ये परेशानी आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? आपका असेंडेंट देखा जाए तो स्कॉर्पियो का है, जिसमें सैटर्न बैठा हुआ है, बचपन से मुश्किलात दिखा रहा है, परेशानी डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, जितने भी काम किए एक काम भी आपको हाथ पर नहीं लगा, उल्टे से खर्चा बहुत कर लिया, परेशानी है। और हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, स्पेशली आपको बोन्स का प्रॉब्लम रहेगा, हड्डियों का दर्द रहेगा, थोड़ा बहुत मुश्किल में है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको करना है एक येलो सफेद पुखराज कहा जाता है, साथ में एक रूबी याकूत कहा जाता है, दोनों बनाकर इंशाअल्लाह पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। याकूत से आपको अपने अंदर हिम्मत मिलेगी, सेहत अच्छी हो जाएगी, लाइफ में स्टेबल बैलेंसिंग मिलेगा। आपको येलो सफेद से फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, खर्चा फिट जाएगा, तरक्की की दुनिया में आगे बढ़ोगे, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल साहब। यहाँ पर छोटा नाज़रीन के लिए बहुत से लोग आते हैं कहते हैं कि 7 पीढ़ी की गुर्बत है घर में, हमारे वालिद साहब गरीब थे, दादा गरीब थे, परेशानियां मुसीबतें, क्या ये गरीबी हमारे से दूर होगी नहीं होगी? हम नमाज पढ़ते हैं, हम दुआएं पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, मतलब इतना पूरा इल्जाम लगा देते हैं कि अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान क्यों ले रहा है, ये कर रहा है। देखिए एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम बनाने के बाद कुरान में बहुत सी जगह पर खुदा ने वाजे किया है कि मैंने इंसान को अक्ल के साथ हिकमत अता की है, मैंने दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन पैदा कर रखा है, हर चीज है। जब इंसान को प्यास लगती है तो प्यास को बुझाने के लिए पानी को फराहम किया, जब इंसान को भूख लगती है भूख को मिटाने के लिए ग़िज़ा को फराहम किया। हर चीज का सोल्यूशन इसी दुनिया में है। अगर अपनी किस्मत को कोसते रहोगे, बैठते रहोगे, वो क्या होगा, ये क्या होगा, हम वो करते हैं, ये करते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए जब इंसान बीमार हो जाता है, अगर घर में बैठकर मैं दुआ कर लूंगा, मैं दुआ पढ़ लूंगा, मेरे को बुखार कम हो जाए, तो फिर अस्पताल क्यों बना रहे हैं?
डॉक्टर्स क्यों, करोड़ों रुपया डॉक्टर बनने के लिए क्यों खर्चा हो रहा है? मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल अता किया, उसके बाद हिकमत भी अता की, तो इंसान क्या कर रहा है? उस बीमारी से निजात पाने के लिए मेडिकल फील्ड में जा रहा है। साइंस इतना डेवलप हो चुका है। साइंस मतलब क्या है? इंसान की अक्ल का दूसरा नाम है साइंस। अब अभी हम कंप्यूटर सामने रखे बैठे हैं, कंप्यूटर का मतलब क्या? यही इंसान ने तो बनाया है। इस कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है? इंसान ने बनाया, इंसान की अक्ल ने बनाई है। जब ऐसी अक्ल आपके अंदर है तो उस अक्ल को जगाना है। जब खड्डे में गिर जाओगे, घड़े में गिर जाओगे और सोचोगे अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा है इस खड्डे में मरना, क्या मरोगे? बाहर निकलने की तदबीर ढूंढना है, अक्ल को इस्तेमाल करना है, कैसे बाहर आना है। इसी तरीके से हर परेशानी से बाहर निकलने के लिए, गुर्बत से बाहर निकलने के लिए, रास्ते सही रास्ते में जाने के लिए बहुत से लोग आते हैं, उनको जो कारोबार करना अलग होता है वो अलग करते हैं और उल्टा कहते हैं मैं कर्जे में डूब रहा हूं, कोई कारोबार सही नहीं जम रहा है। क्या करते हैं? रियल एस्टेट करता हूं, घर दिलाता हूं, वो करता हूं। ऐसा नहीं रहता। हर इंसान के लिए अलग अलग बिजनेस होता है। हर कोई अगर सोच ले कि मैं वो बन जाऊं, नहीं बन सकता, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने एक हुनर देकर नीचे भेजा है। मैं पिछले भी कहा था 6 महीने पहले, मेरे पास एक आदमी आया था, बंदा आया था, बात करने का सलीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 मिनट मेरे पास पेपर मांगा, पेंसिल मांगा, अपना जो पिक्चर जो होता है, मेरा फोटो अभी घर में लटकाया हुआ है, वो पूरा छुड़ा दिया। मैं बोला अल्लाह ताला ने इतना उसको मतलब वो ये दिया, सलीका दिया है, इतना उसको हुनर दिया है, हुनर में इतना अच्छा फोटो निकाल दिया। तो बाद से मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जो आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों को मैं उनको इंट्रोडक्शन भी कराया। तो आज बंदा अच्छा पैसा कमा ले रहा है, कुछ भी नहीं मालूम, महीने में 40-50 हजार रुपए कमा ले रहा है। ये हिसाब से अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई हुनर देकर जमीन पर भेजा है। उस हुनर को अपनाकर अगर जिंदगी में आगे बढ़े, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी सही बात है। जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी हुनर से नवाजा, और वही अगर हुनर का इस्तेमाल करे हिकमत के साथ तो इंशाअल्लाह तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आमीना खानम बोल रही हूँ, बैंगलोर से। आमीना खानम, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 2 मई जी 1999। वक्त 5 बजे दोपहर में, शाम को 5 बजे। हाँ शाम को। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिना खानम साहबा। वालेकुम अस्सलाम सर। बेंगलुरु से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बैंगलोर से बात कर रही हूँ। बताइए क्या जानना है? जी फ्लाइट के बारे में जानना है। अभी 10th का एग्जाम भी लिख रहे हैं, ओके। तो उसके बारे में भी जानना है थोड़ा। इंशाअल्लाह ताला उम्र छोटी है, 10th का एग्जाम लिख रहे हैं, मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इंशाअल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। रही बात हमारे जो सब्जेक्ट की होती है, थोड़ा हाफिज़ को स्ट्रांग करना है, टैलेंट को बढ़ाना है, सोच को बढ़ाना है, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आपने कहा लाइफ के बारे में जानना है। यहाँ पर कुरान की छोटी सी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह मुल्क की पहली आयत है। वो बाबर का जाती तमाम दुनिया को अपने कब्जे खुदरत में रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला आपकी जिंदगी भी अच्छी रहे, इंशाल्लाह करें, हम दुआ करेंगे। लेकिन अगर जायचे का देखा जाए तो आपके जो जायचे में दिखा रहा है, मैनेजमेंट फील्ड में जा सकती हैं। जैसे कि अगर आप एजुकेशन के बाद आप कॉमर्स ले सकती हैं, कॉमर्स लेने के बाद उसे BBA में जा सकती हैं, BCom कर सकती हैं, अकाउंट्स मतलब फील्ड में जा सकती हैं, मैनेजमेंट में जा सकती हैं। लेकिन मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, क्योंकि मर्क्यूरी डेबिलिट नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब सोच कम हो जाएगी, हाफिजा कम हो जाएगा, मेमोरी पावर थोड़ा कम हो जाएगा। आप मेहनत कर पढ़ेंगी, एग्जाम में भूल जाएंगी। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने के लिए आपको मर्क्यूरी स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको करना है एमराल्ड मिनिमम 4 कैरेट का रहना है, एक लॉकेट बनाइएगा, गले में पहनिएगा। अल्लाह के हुक्म से, उस लॉकेट की बरकत से, उस अल्लाह की नेमत की बरकत से आपका हाफिजा स्ट्रांग होगा। इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल्स में आगे बढ़ेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो उम्मीद है आमना साहिबा, जो डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया उस पर आप अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम जाहिदा खातून है। जाहिदा खातून जी। आप अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरी लड़की के बारे में बात करना है। अपनी जी बेटी का नाम बताइए। समरीन फातिमा है। समरीन फातिमा जी। जी तारीख पैदाइश बता दीजिए उनकी। उनकी 21/1993 है। 21/1993। जी हाँ। जी महीना कौन सा है? महीना जनवरी है। ठीक है, वक्त बताएंगे आप?
वक्त जुम्मा जुम्मा जोहर के बाद 2 बजे। 2 बजे, ठीक है। आप क्या पूछना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं अपनी बेटी के बारे में? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शादी रिश्ते के लिए बात करने का है अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा खातून साहिबा। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आई थी आपके पास बंजारा हिल से मेरे लड़के को लेके। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मोहम्मद माशाअल्लाह एजाज को। माशाअल्लाह। तो समरीन के बारे में जानना है अभी? जी हाँ, मेरी लड़की के बारे में जानना है। इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। क्या शादी के बारे में जानना है? जी हाँ, शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं। ओके, रिश्ते आ रहे हैं, देखने चले जा रहे हैं। हैं। ओके, चलो अच्छी बात है, आपको तो लाइन मिल गई है। इंशाल्लाह हम इसी में बता देंगे, बाद में आप इंशाल्लाह उसको फॉलो कर सकती हैं। जैसे कि आपने कहा 21 जनवरी 1993 जुम्मा नहीं था, जुम्मे का दिन था, याद रख लीजिएगा, उस दिन थर्सडे का दिन था। दूसरी बात है, आपकी बच्ची का जायचा अगर देखा जाए तो टारस का असेंडेंट है, थोड़ा पावरफुल है, सेल्फ अर्निंग है, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर है, मैनेज स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं। थोड़ा बच्ची बहुत उम्दा ख्याल की है, ऊंचा ख्याल की है, थोड़ा ये सभी बच्ची में है, थोड़ा दिखने में अच्छी लगती हैं, खुद पैसा कमाएंगी, किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली नहीं है, हेल्पिंग नेचर, दूसरों की ज़्यादा मदद करेंगी। और सेकेंड हाउस का, और अगर सातवें घर का मालिक अगर देखा जाए तो वीनस थोड़ा गर्दिश में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, रिश्ते आते हैं, देखते चले जाते हैं। आपकी बेटी के जायचे में थोड़ा वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में मेरक्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है। मेरक्यूरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पन्ना पहनाना है, यमराल कहा जाता है, साथ में एक वाइट सफ़ेद सफ़ेद पुखराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना। इंशाल्लाह ताला 2016 अगस्त के बाद रिश्ता जम जाएगा, इसी साल में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको तो रास्ता मालूम है, आपके बेटे के लिए पहले आ चुकी हैं, इस हिसाब से फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह खुशहाल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे हेलो जी जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी अपना नाम बताइए। जी, अरे अभी डॉक्टर साहब से बात हुई नहीं मेरी, भी आप कहने बात करवा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब ने जी आपने सही जगह कॉल किया। जी नाम अपना बताइए। जी मैंने जी अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दी है। मेरा नाम आबरू है। आबरू जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बरेली से बोल रहे हैं। जी अपनी तारीख पैदाइश, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, अपने अभी तो मैंने बेटे के बारे में पूछना था, बेटे के बारे में मालूम हो जाए मुझे, फिर बेटी के बारे में पूछूंगी मैं। एक के बारे में बात कर सकती हैं पहले। बेटे अच्छा, बेटे के बारे में बात करवा दी। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है शहरोज। शहरोज। मैंने बताई थी ना डेट ऑफ बर्थ आपको अभी। जी आप फिर से बता दीजिए। शहरोज, उनकी तारीख पैदाइश फिर से बताइए। 13/3/90। 13/3/90। जी वक्त बताएंगी कुछ? वक्त है 10:50 AM, 10:50 मतलब मॉर्निंग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। और उर्दू तारीख से है शुभरात की 15 तारीख। जी डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप खुद उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर और साहब। दिन मंगल है। अस्सलाम वालेकुम आबरू साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसे हैं आप? जी अल्लाह सलामत रखिए आपको। मंगल के दिन बेटा पैदा हुआ है आपका। जी आपकी दुआएं है। क्या जानना है आपको? जी ये बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ, उनके नेचर के बारे में कैसा रहेगा। अभी क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा पढ़ रहा है अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहा है? एमटेक कर रहा है। बीटेक के बाद एमटेक कर रहा है। ओके माशाल्लाह। देखिए आपके बेटे का अगर जायचा देखा जाए तो टारस का असेंडेंट बना हुआ है, मतलब अच्छे स्किल्स रहेंगे बच्चे में, एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर भी हैं, टीम लीडर भी है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह क्रिएटिविटी है, कुछ ना कुछ करके दिखाना, नॉलेज है, विजडम है, ये सारी चीज़ें आपके बेटे के अंदर हैं। आला तालीम है, इंशाल्लाह एमटेक के बाद भी कुछ ना कुछ पढ़ाई करके आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, बेटे के जॉब के मसले में बाहर की दुनिया में जाने के इम्कान ज़्यादा हैं, या तो यूके को जाएगा या तो यूएस को जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बाहर जाकर पैसा कमाने के इम्कान हैं, बाहर वहाँ पर उनका मुफीद अच्छा रिज़्क रखा हुआ है। लेकिन बीइंग ए मदर, उनका जो जायचे में अगर देखा जाए तो वीनस और मार्स मिले हुए हैं। वीनस और मार्स का मिलना थोड़ा शादी में मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो फाइनल जो मामला होता है, शादी, अच्छी सी बीवी मिलना, लाइफ में सुकून रहना, उस सुकून को पाने के लिए, अच्छी बीवी मिलने के लिए आप करना है एक वाइट सफ़र, साथ में एक अमराल पन्ना कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। ये दोनों पहनाने के बाद अल्लाह के हुक्म से, इस नेमत की बरकत से क्या होगा, आपके बेटे की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगा, एजुकेशन कंप्लीट करेगा, अच्छा जॉब करेगा, अच्छी शादी भी होगी, खुशहाल रहेगा, बाहर की दुनिया में जाकर पैसा कमाए, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ. یہ ایک ایسا پروگرام جس میں آپ اپنے مختلف سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. جواہرات کا کرشمہ یا راسک جیمز اور جیولرز کے بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے. راسک جیمز اور جیولرز نے جواہرات کے کرشمے نے لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی ہیں, ان کی زندگی میں خوشحالی لے کے آیا ہے. لوگوں کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں, اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں دونوں جہان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے یہ جہان فانی, اور اس جہان فانی کی اشرف ترین تخلیق ہے حضرت انسان. کائنات میں انسان کے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے جس میں امتحان بھی ہے, آزمائش بھی, راحت بھی ہے, تکلیف بھی, صحت بھی ہے, بیماری بھی, اور ساتھ ساتھ نجات کی راہیں بھی اور ذریعے بھی. انسان کو مالک و مولا نے ذہن جیسی نعمت سے نوازا کہ علم سیکھو اور مشکلات کا حل تلاش کرو. انسان کو زندگی کے سفر میں صحت و تندرستی کے علاوہ بھی کئی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کامیابی اور شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, لیکن راہ انسان کو بتائی ہے. ہر پریشانی کے ساتھ اس کا حل بھی دیا ہے. کھوج لگانا حضرت انسان کے ذمے ہے. جیسے طبیب یا ڈاکٹر صحت یابی کے لیے دوا دیتا ہے, ویسے ہی دوسری پریشانیوں کے لیے نجات اور علاج کے کئی اور ذرائع بھی ہیں. کوئی ذریعہ مشکل, کوئی سخت تو کوئی خوبصورت. جی ہاں, چونکہ یہ نہیں, قادر مطلق نے کائنات کی ہر شے انسان کے استعمال کے لیے ہی بنائی ہے. راسک جیمز اینڈ جیولرز. یہ جانتے ہیں کہ عام طور پر لکی سٹون اور جیمز سٹون جسے کہا جاتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں. یہ نعمت اللہ ہیں, یعنی اللہ کی نعمتیں. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان کا ذکر کیا ہے. پتھر انوکھی خصوصیات کا ٹھوس مجموعہ ہوتے ہیں, لیکن پتھروں اور جواہرات کے ڈھیر سے معالج یعنی علاج کرنے والے کی خصوصیت رکھنے والے گوہر نایاب کو ڈھونڈ نکالنا ماہر نظر یا ایکسپرٹ کا فن ہوتا ہے. ایسے ہی ماہر فنکار راسک جیمز اینڈ جیولرز 50 سالوں سے گوہروں کے ذریعے لوگوں کی خدمت کا کام انجام دیتے آ رہے ہیں. راسک کے تمام جیمز مائن سے نکالے گئے ہیں. اصلی جیمز کو پرکھ کر تراش کر 100% وارنٹی اور سند و سرٹیفکیٹ کے ساتھ دیے جاتے ہیں. ہمارے پاس قدرتی روبی, یلو سفائر, نیلم جیسے بہترین و بیش قیمتی جیمز دستیاب ہیں. یہ جیمز قدرتی طور پر بے حد اثردار ہوتے ہیں. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورج کی تپش سے انسان کو صحت ملتی ہے, چاند کی ٹھنڈک سے انسان کو سکون ملتا ہے, پانی کے پینے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے. اسی طریقے سے ایک صحیح گوہر کے استعمال سے انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے, اپنی منزل کو انسان پہنچ سکتا ہے, خوشحال رہ سکتا ہے. راسک جیمز جیولرز رضا صاحب جو حیدرآباد میں یہاں دکان لگائے ہیں, اور ڈاکٹر روشن صاحب, یہ بہت بڑا ریسرچ کرنے کے بعد اور یہ آدمی کے نام سے اور اسٹار کے حساب سے اسے پتاروں کے تعلق سے دیکھ کے غور کر کے, چونکہ وہ میں دونوں بھائیوں نے اس میں PhD کی ہے, کافی اچھی. میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کم لوگ ہیں جو انسان کے اسٹارز دیکھتے ہوئے اور ان کا لیے نگ جو ہے چوائس کرتے ہیں, تو وہ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں اس دکان کو, جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. مجھے بھی بہت سے لوگوں نے کہا, اور میرے محبوب نگر MP صاحب بھی 2 سال پہلے بہت کمزور ہو گئے تھے, یہاں آپ کے پاس آ کر نگ لینے کے بعد سے رضا بھائی کے پاس سے کافی ہیلتھ میں تبدیلی آئی, صحت کافی اچھی ہے. اور اسلام میں بھی عقیق پہنتے ہیں لوگ, نگ پہنا کرتے تھے. بہت سے لوگ جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو میں دیکھا ہوں وہ عقیق خرید کر لاتے ہیں, اور یہاں پر رضا بھائی اور ان کی فیملی بہت اچھی سروس دے رہے ہیں, اور میں خاص طور سے MM حسین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. راسک جیمز اینڈ جیولرز, جہاں پر عوام کی پریشانیوں کے حل کے ساتھ ساتھ اصلی گوہر بھی سرٹیفکیٹ کے ساتھ دیے جاتے ہیں. اگر آپ بھی اپنی زندگی میں پریشان ہیں, پریشانی پیسوں کی ہو, پریشانی صحت کی ہو, آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہوں,
बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर बी वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर, B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। Email rasikgemshyd@gmail.com. Website rasikgems.com. Rasik Gems and Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. तो नाज़रीन, आपने देखा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से बदला है, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आया है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स। चाहे वो आम आदमी हो या मिनिस्टर हो, सब ने इसकी तारीफ़ करी है। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? शबीर हुसैन बोल रहा हूँ, JNK जम्मू से इस वक्त। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए शब्बीर साहब। 31 मार्च 1960 में है ये डेट ऑफ बर्थ में मुझे सर्टिफिकेट जो है ना। जी जी 31 मार्च 1960, मगर बेसिकली मेरी तारीख पैदाइश है 5 जुलाई 1960, 10 मिनट कम जी शाम के टाइम। शाम के टाइम। जी आपको अपनी वालदा साहिबा का नाम बताना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आप जो जानना चाहते हैं, डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं जनाब? जनाब ठीक ठाक, सेहत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बताइए, देखिए मेरे भाई, जुलाई 5 1960, ये तो आपका रियलिटी है ना? सर मेरा बेसिकली मेरा है 5 जुलाई 1960। ओके, वक्त क्या बताया आपने? शाम का वक्त। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 10 मिनट कम 8 शाम का टाइम। 8 बजे 10 मिनट कम 8। ओके, क्या जानना है अपने बारे में? मैं अपने बारे में जानता हूँ, मेरी प्रमोशन हो गई और अपसेट रहता हूँ अक्सर। मुझे थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, अपसेट में रहते हैं, प्रोफेशन में डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ा मुश्किलात हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है, उठाना है लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किलात फंसे हुए हैं, माइंड कन्फ्यूजन है, थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा है, कमाई रुकी हुई है, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, साथ में रहने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं लेकिन आप पीछे हो जा रहे हैं। ये सारे परेशानी आपकी ज़िंदगी में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक ब्लू सफ़ेर पहनना है, नीलम कहा जाता है, साथ में पन्ना एमराल्ड कहा जाता है, दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह ज़िंदगी खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल हमीद कश्मीर श्रीनगर से बात रहा हूँ। अब्दुल हमीद साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 25 फरवरी 1971। वक्त बताएंगे? वक्त याद नहीं। ठीक है, डॉक्टर इमाम रजा साहब से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे भाई? बस जी ठीक है। देखिए मेरे भाई, आपने जो डेटा पर दिया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, मुश्किलात बहुत हैं, कोई काम में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, परेशानियां चारों से घेरे हुए हैं, दाएं तरफ है अंधेरा है, बाएं अंधेरा, सामने पीछे चारों तरफ अंधेरा है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, टेंशन में, ना फाइनेंशियली ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे, ना डेवलपमेंट है, ना अभी तक लाइफ में आपको सेटलमेंट मिला है। 46 साल हो गए, जिंदगी जहाँ की वहाँ रुकी हुई है। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए
آپ کے لیے کرنا ہے ایک یلو سفر پکراج کہا جاتا ہے، جسے آپ کو ترقی کے لیے، فائنینشلی گروتھ کے لیے، گیان کے لیے سب اچھا کام کرے گا۔ ساتھ میں ایک روبی پہننا ہے جس سے آپ کو ہمت، اندرونی ہمت آئے گی، سیلف کانفیڈنس بڑھے گا، لائف میں اسٹیبلٹی ملے گی، اسٹیٹس آئے گا، شہرت ملے گی، خوشحال رہو گے۔ وش یو آل دی بیسٹ سر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ شکریہ جناب۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جواہرات کا کرشمہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ نے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم لوگ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام کے ذریعے آپ کو معلومات فراہم کر سکے اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ لا سکے۔ آپ نے اگر ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنیں گے، اس پر آپ مشورہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ ضرور آئے گا اور خوشحالی آئے گی۔ بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔